सो ब्रदर, आज का जो शीर्षक जैसे भाई ने कहा, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। And as आपका today, brothers, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। and as brother said today, that our topic for today's message is the grace of God is sufficient for me. तो ये सेकेंड कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9 से लिया गया है। And this title I have taken from the verse in Second Corinthians chapter 12 and verse 9. वहां पर हम देख सकते हैं कि पौलुस परमेश्वर से बेग कर रहा है, बोल रहा है, प्रभु ये दर्द, ये तकलीफ जो मेरे शरीर में है, जो शैतान मुझे कांटा चुभा रहा है, इससे मुझको मेरा छुटकारा दे प्रभु, इससे मुझे छुड़ा ले। And here we read in the verse that in this chapter that Paul is pleading to the Lord that Lord, that pain, that suffering which you have caused me in my flesh, that thorn in my flesh which devil is poking me, please deliver me from this. वहां पर ऐसा लिखा, 3 बार पौलुस ने प्रार्थना किया प्रभु से। And we read there that it was 3 times that the Paul prayed to the Lord. लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। But Lord replied to the Paul that my grace is sufficient for you. कई बार हम सोचते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, कई बार हम सोचते हैं कि पैसा और हमारे पास जो ताकत होती है वो सारे हमारे लिए काफी होगा। And as a human being, we all tend to think like that. If we have money or prosperity, everything will be good. कोई भी चीज का समाधान इससे हो सकता है। Or we can solve any of our problems with that. बट ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये बात सच नहीं है। सच ये है कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए एज अ बिलीवर, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो है प्रभु का अनुग्रह। But brothers and sisters, this thing is not true at all. But as a believer, as a child of God, the only thing which is important and which will help us is the grace of God. एक व्यक्ति को अच्छा आरोग्य है लेकिन उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, तो उसका आरोग्य कुछ फायदे का नहीं। If a person is having a healthy flesh or a healthy body and he's having prosperity, if he is not having grace of God, it's of no use. देखो, संसार में कितने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, अच्छा आरोग्य, सब कुछ है, बट इफ दे डोंट नो क्राइस्ट, अगर उन्होंने क्राइस्ट को ही नहीं जाना, उसका अनुग्रह को नहीं जाना, तो वो उनके लिए कुछ लाभदायक नहीं होगा। Suppose a person is having a name and fame and wealth in this world, but if he is not having the grace of God, it's of no, that wealth is of no use to him. लेकिन एक व्यक्ति शायद वो बीमार होगा, शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे अपना घर चलाने के लिए, शायद वो बहुत तकलीफ से गुजर रहा होगा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उसके पास है, तो बाइबल कहती है ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन। But if a person who is sick at all the times and he is not that much wealthy that he can feed and run his own family, but if that person is getting the grace of God, then the Bible says that such a man is a blessed man. क्योंकि उसके 9वें वचन के आगे ऐसा लिखा, तेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। And because in the further, if we read that verse in verse 9, further it says that in my weakness the power of Christ may dwell in me. तो जब हम कमजोर होते हैं, हम लाचार होते हैं, हम कोई काम कर नहीं पाते, हमारे जीवन में कुछ हम कर नहीं पाते, ऐसे टाइम पे परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमको फिर से खड़ा करता है और अपनी महिमा वो हमारे जीवन से प्रकट करता है। And in such times where we lose our hope and we find ourselves that I am of no use and I am unable to do anything, in such a time the grace of God helps us and lifts us up and makes us stand on our feet. ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक ग्रेस वर्ड, जो अनुग्रह वर्ड है, वो एग्जैक्टली क्या है? And brothers and sisters, the word grace, what does it mean actually? जब मैं स्कूल में था, जब स्कूल में हम लोग को जब हम एग्जाम देते थे तो उसमें 4 टर्म होता था, वो चारों टर्म में मिलाकर हमें 105 करना होता था। And when I was in my school and we used to have a 4 terms examination and altogether we had to score 105 marks. अगर 105 नहीं हुआ तो वो बच्चा, हर सब्जेक्ट में 105 नहीं होता है तो वो बच्चा फेल किया जाता है। And if a student or that child is not making not scoring 105 marks in each term, each subject, then that child will be considered as a fail. लेकिन स्कूल में ऐसा एक नियम था, अगर एक बच्चा हर पढ़ाई में अच्छा 105 के ऊपर चले गया, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट में या कोई विषय में
अगर वो 105 नहीं कर पाया, तो अगर समझो 5 या 10 मार्क उसको कम पड़ गए, तो टीचर एज अ ग्रेस मार्क वहां पर ऐसा ऐड करती थी और वहां पर लिखती थी इतना मार्क मैंने उसको ग्रेस दिया है। And suppose a student is scoring very well in 3 terms, and in one examination or in one term, if he is lacking or getting failed by only 5 or 10 marks, then that teacher who is examining that child's question paper or that answer sheet, that teacher will add some more additional marks as a 5 or 10, whichever is required, and it was considered as a grace marks, and that child gets cleared that examination. हाँ, तो उसका साल बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि टीचर ने उसके ऊपर दया दिखाई, अनुग्रह दिखाया और उसको 5 या 10 मार्क ग्रेस दिया, उसका साल बर्बाद नहीं होता है, वो आगे बढ़ पाता है। And by the way that teacher is showing grace upon that child, because of which the child's that whole year is not getting wasted, and he is not need to sit again in that same class, but he is getting promoted to the next standard. वैसा ही परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह दिया था, लेकिन बाइबल कहता है रोमन्स अध्याय 3 में, वी ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ हिज ग्लोरी, हम सब लोग पाप करने के कारण उसका जो अनुग्रह था उससे गिर चुके थे। But in the same way, God has showered His grace upon us. But in Romans chapter 3, we read that the Bible says that we all have fallen short of God's grace and God's glory because we have sinned against Him. जब जब एक व्यक्ति खुद से पाप करता है, जब वो एंजॉय करता है पाप को अपने लाइफ में, वो परमेश्वर का अनुग्रह से गिरा हुआ व्यक्ति है। And if a person willingly sins against God, constantly and consciously sinning against God and God alone, he has already fallen down from the grace of God. लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा ही गिरा हुआ रहने नहीं दिया, उसने अपने पुत्र यीशु के द्वारा फिर से ये अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट किया है। But God has not left us alone in that pathetic situation only, but God has shown His mercy upon us and sent His own Son Jesus to lift us up and give us once again His grace. बाइबल वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 1:16 में, परमेश्वर यीशु की परिपूर्णता से, यीशु की फ्रॉम द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट हम सब ने पाया है अनुग्रह पे अनुग्रह। And in John chapter 1 verse 16 it says that of His fullness we have all received grace upon grace. तो उसके अनुग्रह से ही हमने वापस से वो अनुग्रह को पा लिया है। And by the grace of God we all have received grace of God. So brothers and sisters, ये अनुग्रह का हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कितना इम्पैक्ट है? And brothers and sisters, how much the grace of God can have an impact on our life? इफिसियन अध्याय 1:7 में ऐसा लिखा है, Ephesians chapter 1 verse 7 it says, in him we have redemption, forgiveness of sin by his grace. उसके अनुग्रह से हमें अपने पापों से क्षमा मिला है। And Ephesians chapter 1 verse 7 it says that because in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our wrongdoings according to the riches of his grace. और रोमन अध्याय 3:24 में ऐसा लिखा है कि उसके अनुग्रह के द्वारा हमें जस्टिफाई भी किया उसने, freely justified us. And Romans chapter 3 verse 27 it says that by the 24 brother. 24 it says that being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ. एफिसियन 2:8 और 9 में लिखा है, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ है, we have been saved. And Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 it says, for by grace you have been saved through faith, this is not of yourself, it is a gift of God. तो हमने देखा यहाँ पर हमें पाप की क्षमा अनुग्रह से मिला है। And we have seen that we have received forgiveness of our sins by God's grace. Justification अनुग्रह से हुआ है। And we have been declared justified in the eyes of God by grace. पापों से उद्धार, पापों से बचाया गया अनुग्रह से हुआ है। And our redemption, our salvation from sin is done by God's grace. और प्रेरित अध्याय 20:32 में ऐसा लिखा है कि उसके अनुग्रह भरे वचन के द्वारा वो हमको बिल्डअप, वो हमको उठाता है और खड़ा करता है। And Acts chapter 20 verse 32 it says that by and verse 32 brother. Yeah. And now I entrust you to God and to word of his
grace which is able to build you up. So यहाँ पर लिखा है, and the word of his grace which is able to build us, मतलब उसका अनुग्रह भरा वचन हमको build बनाता है. And here the word says that word of his grace which helps us and enable us to build up. टाइटस 2:11 में ऐसा लिखा है कि उसका अनुग्रह भरा वचन हमको ना कहना सिखाता है पाप के विषय में. And Titus chapter 2 verse 11 says that for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, and हाँ, उसके आगे पढ़ो ब्रदर. instructing us to verse 12, no, you said. टाइटस 2:11 का थर्ड वाला है उसमें. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, instructing us to deny ungodliness and worldly desires. वहां पर लिखा है deny ungodliness. हर एक चीज जो भक्तिमय नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको ना कहने का अनुग्रह हमें ताकत देता है. And here we read in this verse that grace of God helps us to deny ungodliness and worldly desires. So brothers and sisters, हम देख सकते हैं कि ये अनुग्रह ही प्रभु का ये सारा चीज करने के लिए हमें सहायता देता है. जैसा पाप का क्षमा देता है. And we read here, brothers and sisters, that by grace of God we are able to do all these things, like we receive the forgiveness of our sins. उसके बाद हमें जस्टिफिकेशन, जहां पर हमने जो पाप किया ही नहीं है, ऐसा प्रभु हमें जस्टिफाई करता है. And like we have never sinned even once before in our life, like that we get justified before God by grace. और उतना ही नहीं, वो हमारे पापों से हमें बचाता है. He saved totally from all the sins. And not only that, he even saves us from our sins. और उसका अनुग्रह हमें बिल्ड करता है, हमें बनाता है नया. And God's grace helps us to build each one of us. और उसका अनुग्रह हमें हर एक अनगॉडलीनेस चीज है उसको ना कहने का हिम्मत और ढाढ़स हमारे अंदर देता है. And God's grace also helps us to say no to sin and no to ungodliness. तो ये अनुग्रह हम सबके लिए कितना काफी है. इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है. And like that, brothers and sisters, this is how the God's grace is upon very much importance for us. And God says that my grace is only sufficient for you. तो परमेश्वर का ये खुद का वर्ड है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. ये पौल हमसे नहीं कहता है, ना कोई परमेश्वर का दूसरा दास अनॉइंटेड वन हमसे नहीं कहता. ये प्रभु हमसे, पौलुस से कहता है और हम सबसे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी. These are the words of a living God. And this is the word that my grace is sufficient for you, not spoken by any man or like Apostle Paul or any other godly preacher or apostle of God or man of God, but it is the God himself who spoken to the Paul the same thing and now speaking to each one of us. So brothers and sisters, ये परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें प्राप्त होता है, ये इससे बड़ा और कोई ब्लेसिंग हमारे लाइफ में नहीं हो पाएगा. So brothers and sisters, the grace of God which we receive in our life is a great blessing for each one of us. I don't think like any other blessing is superior to this one. बाकी सब प्रभु के आशीष इसके द्वारा ही आते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है प्रभु का अनुग्रह. जब तक प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, हमारे लाइफ वैसा ही प्रभु की इच्छा प्रमाणे बनता जाएगा. जैसा अनुग्रह हमारे लाइफ से हट जाता है पाप के कारण, पाप में जीने के कारण, पाप को एंजॉय करने के कारण, तो ये सारा डाउनफॉल वहां से शुरू हो जाता है. And brothers and sisters, it is the grace of God which helps us to be built up and to be transformed in the ways of the Lord. If we sin against the Lord and consciously we are continuing in the sin, then we will be falling from the sin and from the grace and will not receive the grace. और ब्रदर्स एंड सिस्टर, बाइबल कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह दीनों को देता है. दीन. And Bible says that God gives his grace only to the humble. और ये बात 3 बार बाइबल में लिखा गया है. पहला नीति वचन प्रोवर्ब्स 3:34 में. And it's written in 3 times in the Bible. It's repeated that in Proverbs, which was brother 3:34. Proverbs chapter 3 verse 34 it says. और उसके बाद याकूब की पत्री के अध्याय 4 में लिखा है. And then it says in James chapter 4 और verse 6. और उसके बाद में और उसके बाद में पत्रस पीटर, जो पहला पत्रस 5 में लिखा है.
And then we read in First Peter chapter 5 and chapter 3 also. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, 3 बार ये बात दोहराया गया कि प्रभु अपना अनुग्रह दीन व्यक्ति को देता है। And brothers and sisters, the phrase is like God gives His grace only to the humble, repeated 3 times in the Bible. और यीशु हमको कहता है सीखने के लिए कुछ चीज। आपको पता है क्या वो कहता है? लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो कि कैसे नम्र बनना है। And we read in the Bible that Jesus tells us to learn from Him, and the thing which we have to learn from Jesus is to become humble like Him. उसको दूसरे शब्द में हम कहेंगे तो वो ऐसा कहता है, मुझसे सीखो कि प्रभु से अनुग्रह कैसे प्राप्त करते हैं। Or if I want to paraphrase it, like learn from me how to become humble or how to get the grace of God. हाँ, प्रभु से अनुग्रह मुझे पाने के लिए उसका की है to become humble. And to receive God's grace, the key to that thing is to become humble before God. तो यीशु मसीह हमको वही सीखने कहता है। वो कहता नहीं कि learn from me how to show off, how to do this thing, how to do that thing, ऐसा सब नहीं बोलता। हाँ, ये कैसे करना है, वो कैसे, वो एक ही चीज कहता है, learn from me how to become humble. And we read in the word that Jesus said, learn from me, and Jesus is not saying that learn from me how to do some things or how to sort out everything or doing by your own strength, but Jesus is simply saying, learn from me to be humble. बहुत सारे लोग आज संसार में यीशु मसीह से बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञान, बुद्धि, विजडम, अनॉइंटिंग, ये सब पाते हैं, बट जीसस ने ये सब चीजों से ज्यादा महत्व चीज नम्रता को दिया है, नम्र बनने, और उसने वो कहा है कि तुम ये सीखो मुझसे। And so many people in this whole world are learning from Jesus so many things, like some learning from him how to do ministry and how to heal or any other thing like that. But Jesus was emphasizing more on learn from me how to be humble before the Lord. ब्रदर्स एंड सिस्टर, में जब नया नया यीशु में आया था, तब मैं कोई पास्टरों को देखता था, वो लोग प्रोफेसी करते थे और वो लोग संदेश देते थे, किसी का नाम लेकर वो लोगों को बोलते थे कि ऐसे नाम का एक व्यक्ति आया और उसके जीवन में ये प्रॉब्लम है। When I used to see that, मैं गॉड से बहुत प्रे करता था, लॉर्ड गिव मी दैट पावर, मुझे भी ऐसा अनॉइंटिंग दो कि मेरे अंदर भी वो कार्य ऐसा हो सकेगा, मैं भी ऐसा कर पाऊं। And brothers and sisters, when I came to the Lord for the first time in my life and I came to know the Lord, I used to hear so many preachers and pastors where they used to perform some miracles and they used to call out the person's name and they used to declare whatever problem that person is going through, and they used to prophesy over that person. And when I used to look and see all those things is happening around me, I used to cry out to the Lord in prayer that, Lord, such an anointing I am needing in my life, I am wanting in my life, and please give me that anointing. बट मेरे लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। But all these things never happened in my life. और तब मैं सोचता था कि प्रभु क्यों नहीं देना चाहता। And I used to wonder and think that why Lord is not giving me such an anointing. लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ उसकी मुझे जरूरत थी नहीं। But now I came to know the realization of the thing that I'm not in a need of that thing. That's why I'm not getting it. क्योंकि शायद वो टाइम पे मैं वो चीज इसलिए चाहता था क्योंकि शायद उससे मुझको महिमा और आदर लोग कर पाएंगे। Because that time I was wanting that thing, desiring that thing, because maybe I am wanting my name to be glorified and I wanted to get credit for myself. तो लेकिन प्रभु की इच्छा में कभी था ही नहीं, इसके लिए मेरी प्रार्थना कभी प्रभु ने सुना ही नहीं। But it was not the will of God. That's why Lord never answered my prayer and never heard my prayer. And मैं अभी बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के लिए कि प्रभु ने वो सारे प्रार्थना मेरे को उत्तर नहीं दिया। और इससे बढ़कर जो चीज है, जैसे प्रभु से अनुग्रह पाना, उसके जैसा बनना, ये चीज में मेरे को प्रभु ने फोकस करने के लिए और उस पर चलने के लिए सहायता किया। इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड। And I'm thankful to the Lord that those days of my prayer, Lord never answered and never heard. And I'm thankful to the Lord, and I'm thankful to the Lord for this thing also, that He has now shifted my focus from that thing to become like Christ, to become transformed in His own nature and character is the thing which I'm getting in my life, and I'm thankful to the Lord for that. तो क्योंकि वो प्रभु की इच्छा में था ही नहीं कि लर्न फ्रॉम मी हाउ टू गिव प्रोफेसी, हाउ टू गिव संदेश टू पीपल, कैसे लोगों को संदेश दो, उनका नाम लेके बुलाओ। प्रभु ने वो मुझे सिखाने के लिए बुलाया नहीं। ही कॉल्ड मी टू लर्न हिज
लाइफ, उसने अपने जीवन को सीखने के लिए मुझे बुलाया। लर्न फ्रॉम मी हाउ आई एम मीक, मैं कैसा नम्र हूँ वैसा ही तुझे मैं बनाना चाहता हूँ। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एज अ बच्चे हम जैसे परमेश्वर के, इससे बहुत महत्वपूर्ण चीज और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु का अनुग्रह में हर दिन नम्र बनते जाए। And brothers and sisters, as Jesus said that learn from me, and he's not telling us to learn from me how to prophesy and calling out people's name and prophesy over their life and telling out their problems and all. But the Lord is telling me and each one of us that learn from me how to become humble, how to get His grace, how we can get God's grace. And each one of us, as the child of God, as a believer, is we are getting privileged to become humble like Him. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, परमेश्वर ने ये अपना अनुग्रह हम सबके ऊपर उंडेला है, बहुतायत से मेजर्स कर करके उसने हम सबको ये अपना अनुग्रह दिया हुआ है। And brothers and sisters, God has given each one of us His grace abundantly. He has showered His grace upon us. ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी हमको पता चलना चाहिए कि रियली क्या हम हमारे लाइफ में अनुग्रह है या नहीं है। But brothers and sisters, we should be assured about our life that we are getting God's grace in our life. हमको कैसे पता चलेगा कि रियली प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है? And how we can find that I am really getting God's grace in my life? ऐसा नहीं कि हमारा जरूरत हर दिन पूरा हो रहा है, ये सब तो प्रभु कर रहा है, बट रियल उसका साइन क्या है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें? एक हमें अच्छा हेल्थ है, हमें अच्छा खाना पीना मिलता है, हमारा अच्छा जॉब है, ये सब तो प्रभु ने दिया है, बट द मेजर थिंग जो मेजर साइन है जिससे हम खुद को जांच सकते हैं कि सच में हमें हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, हाउ कैन वी डू दैट? And brothers and sisters, it's not that our daily requirements and our daily need is fulfilled by Lord and supplied by the Lord is the sign of the God's grace. But I am saying what is the most important mark, what is the most important sign by which each one of us can identify, know, and assured about it that we are getting God's grace in our life. मैं बिलीव करता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर एक व्यक्ति के ऊपर सचमुच अनुग्रह आया है तो वो व्यक्ति कभी दूसरे को तुच्छ नहीं समझता और दूसरे को कभी ऐसे उसको ऐसा घृणा से नहीं देखता। क्योंकि मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जब एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो अपना 105 मार्क पूरा नहीं कर पाता और उसको टीचर 15 मार्क ग्रेस दे देती है या 10 मार्क ग्रेस देती है, वो जो फर्स्ट आया उन लोग के सामने जाकर कैसे, किस तरह से वो उसके सामने एटीट्यूड दिखाएगा या किस तरह से उनके सामने घमंड कर पाएगा? ही विल नेवर डू दैट, वो कभी नहीं करेगा। बट वो जो कुछ भी मिला उससे खुश रहेगा, वो कभी दूसरे को कुछ नहीं जानेगा, ना कभी किसी को अपने से छोटा समझेगा। And brothers and sisters, the very first mark by which each one of us can know that we are really getting God's grace is that we will never look down upon any human being or anybody. Like I gave example of that child who is falling short of 5 marks or 10 marks in the exam and was getting failed, but the teacher showered his grace upon that child, and that child was succeeded and proceeded to the next class. So how that can child go to that person or that student who scored first rank in that class, and can that child can do boast about that before that child, that other one who ranked first mark in the class? तो ऐसे ब्रदर हम सब लोग अनुग्रह से घिरे हैं, तो हम कैसे बोस्ट कर सकते हैं जब दूसरे भाई को हम ठोकर खाते हुए देखते हैं, जब दूसरे भाई के साथ कुछ बुरा होता हुआ देखते हैं, हम देखते हैं वो एज अ क्राइस्ट लाइक नहीं है, उसके जीवन में कुछ कमी है। हाउ कैन वी बोस्ट, और कैसे हम उसको नीचा दिखा सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारे ऊपर अनुग्रह, हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। And brothers and sisters, if we are seeing anybody or any brothers or any sister before us and he is stumbling in his ways, he's walking with the Lord, he is getting stumbled and he's falling again and again, how we can boast about ourselves that if we are really getting God's grace, we will never boast about ourselves and we will never look down on that person. ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज है, जैसे रोमन 6:14 में लिखा है, नो सिन शैल हैव पावर ओवर अस because we are under grace. And this is the first mark by which we know that we are getting God's grace. And the second mark is if we are getting victory over sin in our life, this is the mark that God's grace is upon us. हाँ, अगर हमारे ऊपर, अगर हमने सच में प्रभु का अनुग्रह पाया है तो कोई भी पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, मास्टर नहीं बन पाएगा। And brothers and sisters, if we are really receiving God's grace in our life, then
any kind of sin will not have dominion over our life or mastering over our life. वो ऐसा नहीं कहता है कि तुम कोई पाप करोगे नहीं, ऐसा नहीं। पाप को प्रभुता करने नहीं देगा अपने लाइफ में, पाप को मास्टरी अपने ऊपर करने नहीं देगा। The word is not saying to us like that you will not sin again in your life, but the word is saying that sin shall not have dominion, not having master over you. So ये दो चीज मैं समझता हूँ कि हमको बताता है हमको कि सच में प्रभु के साथ प्रभु का अनुग्रह हमने पाया है, कैसे हम जाग सकते। तो पहले Hello. Yeah, brother, can you once again repeat? Your connection was. हाँ, तो ये दो चीज़ों से हम पता चलेगा कि हम कभी दूसरे को तुच्छ नहीं जानते, और दूसरा And brothers and sisters, these are the two signs and marks by which we can identify about ourselves that we are really getting God grace in our life or not. That first, we will not look down upon anybody in our life, and second, that sin shall not have dominion over our life. जनसंहिता 123 के 2 में, and we read in Psalm 123 and verse 2, here we see read about two things. वहां पर लिखा है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रहता हूं ताकि उससे मैं अनुग्रह पा सकूं। And we read there that behold, as the eyes of servant look to the hand of their master, ताकि मैं उससे अनुग्रह पा सकूं, so that I will receive the grace. और नीति वचन 8 के 34 में लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन हु वॉचेस डेली, जो धन्य है वो पुरुष जो हर दिन मेरे वचन को सुनता है। And if we read in Proverbs chapter 8 and verse 24 that blessed is the man who hears my word daily, और मेरे देवड़ी की ओर, मेरे गेट की ओर अपना ध्यान लगाए रहता है। and who stands at my gate and looks upon me. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम हर दिन, वहां पर लिखा एवरी डे, अगर हम प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाए रहेंगे तो वहां हमें अनुग्रह प्राप्त होगा। And brothers and sisters, if we look to the Lord and we lift our eyes upon the Lord and we gaze upon Him, then we will receive the grace of Lord in our life. तो प्रभु हम सबकी सहायता करे, ऐसा ही अनुग्रह हमारे सबके ऊपर बनाए रहे, ताकि हम प्रभु के साथ चल सके आखिरी क्षण तक हमारे जीवन के। So brothers and sisters, may the Lord help each one of us to receive constantly God's grace in our life, and may we each one of us may walk in the ways of the Lord. Amen. About grace, there are two meanings I find in the scriptures, according to the scripture. वचन के अनुसार जो है दो अर्थ हैं अनुग्रह के। And in the Old Testament about grace was not mentioned much. जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि अनुग्रह के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा गया है। But in the New Testament it's all much about grace. लेकिन जो नए नियम है उसमें हम देखते हैं बहुत बार जो है अनुग्रह के बारे में कहा गया है। The one part of the grace is that how God's part, both are God's part, but one is that He gives us unmerited favor. तो एक जो अर्थ है वो है कि जो हम जिसके काबिल नहीं हैं वो परमेश्वर हमें देता है। We heard about the marks. I was a beneficiary of that grace marks too. तो एक जो हमने उदाहरण में सुना कि जो हमें अंक मिलते हैं क्लास में, जब हम फेल हो जाते हैं हमें पास कराने के लिए हमें कुछ अंक दिए जाते हैं। उसके बारे में So we are saved by faith, we are justified by faith, as brother said. तो हम जो है अनुग्रह के कारण हमें उद्धार प्राप्त होता है और हमें जो है धार्मिक हम स्थापित किए जाते हैं। This most of the people understand this. ये तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। But there is one aspect of grace which many people have not understood. लेकिन एक बात है जिससे लोगों ने नहीं समझा है। That is that grace which is mentioned in Romans 6:14. और वो ये अनुग्रह है जो रोमियो का 6:14 में लिखा है। This grace is an enabling, God's enabling power to help us.
तो ये एक ऐसा अनुग्रह है जिसके कारण हमें शक्ति मिलती है, And this is required in our Christian life. और ये बहुत ही जरूरी है हमारे ख्रिस्ती जीवन में। It's very important for us to walk this Christian life with this grace. तो ये जो अनुग्रह है इसका हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी के कारण हम इस रास्ते पर चल पाए। That's why it says in Timothy, इसीलिए तिमुथियुस के पुस्तक में लिखा है, Second Timothy chapter 2 verse 1. दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन। You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। So the grace of God is available, but we must be strong in that grace. The grace should be always upon us. जो अनुग्रह है वो हमारे लिए प्रभु ने उपलब्ध किया है, लेकिन उसमें हमें बलवंत होना भी जरूरी है। Hebrews 12 verse 15. इब्रानियों का 12वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। See to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. 12:15. 12 का 15वां वचन। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। Brothers and sisters, when we fall short of the grace of God, we start committing sin. जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, तब हम पाप में गिर जाते हैं। Okay, so it's so essential for us to always be strong in the grace that is in Christ Jesus. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के जो अनुग्रह जो हमें उपलब्ध होता है उसमें हम बलवंत रहें। And the way to get the grace is, many times grace goes away from our life because we are proud. और कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन से जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उठ जाता है, क्योंकि हम घमंडी हो जाते हैं। James chapter 4 verse 6 says, याकूब का पुस्तक 4वां अध्याय और 6वां वचन। but it says, but he gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. बहुत तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Yeah. So for us to always remain in grace or be strong in the grace that is in Christ Jesus, we must always have that humble attitude, and we must be low in our own. We must be not high in our own eyes, but low in our own eyes. तो अगर हमें परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसमें हमें बलवंत रहना है, तो हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए और अपने आप के बारे में बढ़ चढ़कर सोचना नहीं चाहिए। The Apostle Paul, who said, "My grace is sufficient," when God spoke to him, "My grace is sufficient for you, because when you and he said, when I am weak, then I am strong." और जैसे कि परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा जो अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, और ये जो अनुग्रह है वो तुम्हें अपनी जो कमजोरी में वो ताकत देता है। And that same chapter he says, because I am a nobody. और उसी अध्याय में वो कहते हैं कि मैं शून्य हूँ। Brothers and sisters, I want to be a nobody. भाई और बहनों, मैं एक शून्य के रूप में बनना चाहता हूँ। And I find that God puts me in situations where I am treated like a nobody. और मैंने देखा है कि कई बार ऐसे होता है कि परमेश्वर मुझे ऐसे परिस्थितियों में डालता है कि मैं एक शून्य के रूप में माना जाता हूँ। That is answer to prayer, my prayer. वो जो है मेरे प्रार्थना का उत्तर है। So at that time, then I am strongest when I am weakest. क्योंकि उस समय जब मैं कमजोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, तब
जो है मैं सामर्थ्य से भरा होता I हूँ। want to share something that whenever I go for some meetings, especially I go and I'm getting ready to, and I have to share. I find that all my feelings are so low, and I feel so helpless. तो कई बार ऐसे होता है जब भी मुझे कोई जो है सभा में जाना होता है तो और वचन बांटना होता है तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि बहुत निर्बलता मुझे महसूस होता है। There is I don't feel any power or any, and then the devil also says, devil sort of whispers, the meeting is going to be, nobody's going to come, or meeting is going to be a flop, or all sorts of things I keep on hearing. और शैतान से मैं ऐसी आवाजें सुनता हूँ कि जो सभा है वो कोई भी अनुग्रह नहीं देगा लोगों को, और ऐसे बातें मैं सुनता रहता हूँ। But I've just found the opposite. Once I'm in the meeting, I find the refreshment of God, and the meeting, I find a blessing for myself, and and it's a real encouragement. लेकिन जब मैं सभा में पहुंच जाता हूं तो मुझे मालूम होता है कि जो ताजगी है परमेश्वर से वो मुझे मिलता है और अनुग्रह भी मिलता है। So I like to be now in such situations where I'm helpless. तो मैं ऐसे निर्बलता की परिस्थितियों में होना अपने आप को खुश महसूस करता हूं। And I know that everything else will be good because God will work. क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर उस परिस्थिति में कार्य करेंगे और सबको अनुग्रह मिलेगा। So may God help us really, brothers and sisters. This is very important for us to always be strong in the grace that is in Christ Jesus, and we should not be missing grace, because when grace is not in our life, we will commit sin. और ये भाइयों और बहनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो है अनुग्रह से वंचित ना रहे, क्योंकि अगर हम अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे तो हम पाप में गिर जाएंगे, और जो अगर हमारे ऊपर भरपूरी से अनुग्रह है तो हम जो है सामर्थ्य हैं। एक दो बातें मैं बांटना चाहता हूं जो 2 कोरिन्थियंस 12:9 में लिखा है कि उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहाँ पर मैं एक चीज सीखने को मिला कि बाइबल में लिखा है कि नया करार में आप जब प्रार्थना करते हो अन्य जातियों की तरह प्रार्थना मत करो, है ना। अब एक चीज अपने प्रभु से मांगा तो दोबारा उसको रिपीट मत करो। प्रभु नया करार में वचन कहा कि अन्य जाति की तरह नहीं करना है, लेकिन पौलुस यहाँ 3 बार, पहले बार भी वो सेम प्रार्थना है, प्रभु जो कांटा मेरा शरीर में छुपाया है उसको हटा दो, और दोबारा भी वही प्रार्थना करते हैं, मेरे ये जो शरीर के अंदर छुपा है वो हटा दो, तीसरे बार भी वही प्रार्थना। तो मैं इस चीज को एक चीज के द्वारा मैं तुलना करता हूँ, यीशु मसीह ने भी एक चीज 3 बार प्रार्थना किया, एक ही चीज। देखेंगे वो किधर लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39 से वहां पर लिखा है कि ये ऐसा घटना है जहां वो क्रूस पर जाने से पहले गेत्सेमने बगीचा के पास में अपने चेलों के साथ जब वो अकेले प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, वहां पर लिखा है कि मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39। तो ऐसा लिखा है कि फिर यह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो कटोरा है, जो यीशु जो हमारी पापों के लिए सारी संसार के पापों के लिए जो सहने वाला है, उस कटोरे के चिन्ह में दिया गया है। और वो प्रार्थना करता है कि प्रभु हो सकेगा तो ये कटोरा से मुझसे हटा दे, यानी शरीर में होके वो चाहता था कि मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, ये संसार के लिए जो पाप की बोझ उठाना था, मैं शरीर में हूँ, ये सब करने के लिए मेरे लिए सही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा।
एक ही प्रार्थना है। और एक वचन में लिखा है कि 41 जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वर्स 42। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर भी वही कटोरा है। पहले वचन 39 में, ये कटोरा मुझसे हटा दो, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण हो जाओ। और दोबारा भी यही प्रार्थना यीशु मसीह कर रहा है कि अगर ये सारी संसार की पाप का दंड अगर मुझे उठाना है, उससे उठाए बिना अगर संसार पाप से छुटकारा नहीं पाता है तो क्या करो, ये आपकी इच्छा अभी भी पूर्ण हो। इधर भी एक ही चीज देखता है दोबारा प्रार्थना में कि ये कटोरा जो है मुझसे हटा लो। और एक चीज तीसरी प्रार्थना वो कहाँ किया, 42 में लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे पिता, 44, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। 26:44 में लिखा है। यानी ये यीशु मसीह 3 बार एक ही चीज के लिए प्रार्थना किया। आप सोचेंगे कि वो परमेश्वर है, लेकिन वो एक ही चीज 3 बार क्यों प्रार्थना किया है? जैसा पौलुस भी उस कांटा के लिए 3 बार प्रार्थना किया, एक ही चीज 3 बार। तो कभी कभी परमेश्वर हमारा शरीर में कुछ चीज हमें तकलीफ देने के लिए रखता है। शायद हो सकता है कि बीमारी या कोई परिस्थिति, कठिन परिस्थिति रख सकता है ताकि हम कमजोर बने। बाइबल में आगे का वचन में लिखा है कि 2 कोरिन्थियंस में, जब आप कमजोर है तब निर्बल है। तो प्रभु चाहता है कि जब हम कमजोर बनते हैं, हम सचमुच हम प्रभु के ऊपर निर्भर होते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारा जानते हुए हमारा शरीर में या हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमारे जीवन में रखता है, लेकिन ये परमेश्वर हमारा भलाई के लिए सोच कर रखते हैं। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु ये चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये कांटा मुझे तकलीफ दे रहा है, हटा दो। हम अच्छा जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु हमसे बढ़कर सोचते हैं। तो ये 2 वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि ये जो वचन है कि जो वायदा के साथ है। पौलुस कहता है कि हटा दो ये कांटा को 3 बार, लेकिन प्रभु बोलते हैं मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। यानी प्रभु कुछ चीज हमारे जीवन में नहीं हटाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक वायदा के साथ हमको ऊंचा उठाते हैं। ये हमको विश्वास करना है कि प्रभु हमारे जीवन में इतना साल से हम प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज हमारे जीवन से हट रहा नहीं है। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, मैं वायदा के साथ आपको उठाना चाहता हूँ। वो वायदा क्या है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। वो नहीं हटेगा, लेकिन आप उससे ऊपर आ जाएगा। तो ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। This grace is a divine favor from God, and it is a free gift given to us. और यह जो परमेश्वर का अनुग्रह है, यह एक स्वर्गीय सम्मति है परमेश्वर की, जो परमेश्वर हमें देते हैं, और यह एक दान है जो हमें मिला हुआ है। So let us remember that what grace is a divine favor and is a free gift by God. तो हमें अनुग्रह के विषय में यह स्मरण रखना है कि यह एक ईश्वरीय सम्मति है परमेश्वर की, और यह परमेश्वर का एक दान है। I will press for the salvation that we receive by grace. So I will go with first John 14. Brother, pray please. और परमेश्वर का अनुग्रह है, उससे हमारा उद्धार हुआ है। तो मैं इसके विषय में पढ़ना चाहता हूँ। 1 यूहन्ना, which chapter, brother? John chapter 1 verse 14. और मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 14। वरन वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। So this word that God gave us, that his son Jesus Christ came with it with full
of truth of it. और यहाँ पर हम इस वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। So God did a favor upon us by using his son, Jesus Christ. और परमेश्वर ने अपनी सम्मति हमें दी है यीशु मसीह को भेजने के द्वारा, Sending his only son in flesh. और उसके इकलौते पुत्र को उसने शरीर में होकर हमारे पास भेजा। And this is the truth that we believe, that Jesus came for us. He suffered, he died, and he rose again. और यह वह सच्चाई है जिस पर हम सभी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, हमारे पापों के लिए उन्होंने दुख सहा, अपने आप को उन्होंने बलिदान किया और वो उनकी मृत्यु हुई और वो फिर से जी उठे। And this is the divine favor from God, that through Jesus we receive the fullness of grace and the favor of God through Christ. और परमेश्वर का यही वह ईश्वरीय सम्मति है, साथ है जो परमेश्वर का हमें मिलता है यीशु मसीह के भेजने द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। I will read the scripture from Titus chapter 2 verse 11 and 12. Brother, please up. और मैं तीतुस chapter 2 verse 11 brother. Yeah, 11 and 12. तीतुस 2:11 और 12, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, So that we might live, training ourselves and living worthily in this kind of ungodly world, to have the favor of God upon us, to live righteous, to live holiness, and to live as the word of the Lord tells us. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, हमें चेतावनी देता है अभक्ति सांसारिक अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। So even in this age that we are living, that we really need the favor of God, we need the grace of God upon us to live in the righteous, in the holiest way, as we have received our salvation. और जैसे कि हम इस युग में बुरे संसार में जी रहे, हमारे लिए आवश्यकता है कि परमेश्वर की सम्मति, परमेश्वर का वह अनुग्रह हम सभी के ऊपर बहुतायत से होने पाए, ताकि हम संयम से, धर्म और भक्ति से जीवन बिता सके। Because it says in same chapter, Titus chapter 3 verse 7, brother. क्योंकि उसी के अगले अध्याय तीतुस अध्याय 3 और वचन 7 में वचन कहता है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनेंगे, So that we might be justified in righteousness, to become the heir of the kingdom of God. जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने, And to hope for eternal life. अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। So we have received His favor, we have received the grace of salvation, but we got to be into this grace and keeping the favor of God upon us to live in the righteous way, in a godly way, in the holiest way. तो हमारे लिए आवश्यकता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, परमेश्वर की ईश्वरीय सम्मति जिससे हमने प्राप्त की है, उसमें हमारे लिए जरूरी है कि हम उसी में बने रहें और धार्मिकता के काम करके हम उसमें अपना जीवन बिताएं। I will end it here with 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Brother? और मैं यहाँ पर 2 कुरिन्थी अध्याय 9 वचन 8 पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। If anybody is lacking the favor of God,
this divine gift, the grace. He is freely to give all of us. Whenever we come to him, we ask him, as we today we said, no, knock, it shall be open, seek, it shall be found. The memory verse, it is time for us to knock, to look for it and to ask for it. Because in this time that we are going through, we really need the favor of God. We really need the divine favor, the grace upon us to live in the righteous way, in the holiest way, to keep the salvation of God in us pure. और हमारे बीच में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे अनुग्रह की कमी हो रही है, जिसने परमेश्वर की उस सम्मति को नहीं पाया है, तो जैसा आज का स्मरण करना हमारा वचन था कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यह हमारे लिए वह समय है जहाँ पर हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है, हमें खटखटाने की आवश्यकता है, और परमेश्वर से मांगना है हमें कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम पर बहुतायत से होने दे, कि हमारी जो आवश्यकता है उसे हम पूरा कर सकें, कि हम उसके अंदर और संयम से जीवन बिता सकें। I'm sorry to take an extra minute over here. I want to give a testimony. I want to say that the time of trouble and difficulties, that what I see around me, that I'm going through, whatever it is. But if I see the storm that's around me, but if I have the eternal peace of God inside me, if I have the joy of peace inside me, if God has given me that strength to go against what is coming against me, it means the favor of God is upon me and God has kept me under his grace. Amen. God bless you all. अब मुझे क्षमा करें कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, लेकिन मैं यह गवाही देना चाहता हूँ कि मैं जीवन में अब जिस परिस्थितियों का सामना कर रहा हूँ, जो परेशानियों मुश्किलों से मैं होकर गुजर रहा हूँ, जो तूफान मेरे सामने है, लेकिन मेरे मन में जो परमेश्वर की अनंत शांति है जो वास करती है, उस शांति के द्वारा मेरे सामने जो तकलीफें आती है मैं उनका सामना करता हूँ और उसमें खड़े रहता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। मुझे अनुग्रह प्राप्त करना मतलब मेरे जीवन में मैंने ये सीखा है और इस तरीका से मैंने देखा है, परमेश्वर का अनुग्रह। दो बच्चे जब लड़ते हैं और हम देखते हैं अक्सर वो लोग ना थोड़ा टाइम के बाद वापस उनके पास जो भी चीज के लिए लड़ते हैं और वो चीज वापस किसी का हाथ में आ गया और वापस वो लोग तुरंत एक दूसरे को पहला हुआ झगड़ा को भूलकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ऐसा मिल जाते हैं, उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। तो परमेश्वर मुझे ये बातें डाल रहा था। परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे अंदर आता है तो हम लोगों के प्रति या हमारा परिवार की हालत में भी हम परमेश्वर के साथ में भी उसी परिस्थिति में आ जाता है। हमारा जीवन में जो भी बुरा या कष्ट या जो भी घटती है हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं, बट बच्चों की तरह हम बन जाने के लिए वो कृपा देता है। ये मैं समझा है, जैसा कि परमेश्वर का वचन में बोलता है, जैसा हमारे पाप को पूरब से पश्चिम जितना दूर किया है उतना दूर किया है। ये वचन बहुत उत्साहित करते हैं मुझे। जब भी सवेरे उठ के कल जो भी किया है हमारे रिश्ता वापस परमेश्वर के साथ इतना अच्छा बना देता है। वचन हमारा मन में आता है तो हाँ, वो याद ही नहीं करता है, हमारा पापों को कहता है, वो याद ही नहीं करता है। तो मुझे बहुत उत्साहित से भर जाती हूँ जब भी ये वचन को याद करती है। तो ऐसा कई वचन है जैसा कि पौलुस का जीवन में हम देखते हैं, वो 5 बार 1 कम 40 कोड़े खाते हैं, कई बार जेल में जाते हैं, एक रात दिन रात समुद्र के अंदर रहता है। इसके बावजूद भी, बहुत कष्ट उठाने के बावजूद भी वो उसका शरीर में एक बीमारी लेके घूमता है और तरह तरह का लोग उसको टोचा भी होएगा। कई बातें उसके जीवन में घटने के बाद भी वो कलीसियाओं को उत्साहित करता है और अपने आप को उत्साहित करता है, उठाता है प्रभु में। हम कहीं पे नहीं देखते है उसको कोई उठाया है, वो कलीसिया को उठाता है, कई लोगों को उठाता है, ताकि वो इसलिए है वो बच्चा जैसा वापस यीशु के पास अपना रिश्ता या लोगों के साथ, क्योंकि
मुझे ये बात उत्साहित करता है, जैसे कि यीशु कहते हैं हम बच्चे जैसा बनना बहुत जरूरी है। तो मैंने देखा है मेरे जीवन में, हमको वो कृपा यीशु ने ऑलरेडी दे दिया है, कभी भी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे हाथों में है। तो जैसे ब्रदर कह रहा था मत्ती ब्रदर, जब हम कमजोर होते हैं उसी वक्त परमेश्वर हमें ताकत भी देते हैं। थैंक यू। I was as I was hearing, what came to me was that the grace of God will help us to deny ungodliness. We heard that from Titus chapter 2 and verse 12. और जो हमने अनुग्रह के विषय में आज सुना, जिसमें से वह वचन जो तीतुस के अध्याय 2 और वचन 12 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें अभक्ति और संसार के अभिलाषों से मन फिराने और उसे ना कहने के लिए सहायता करता है। And also we heard that that we should not fall short of the grace of God, that we heard from Hebrews chapter 12 and verse 15. और एक और वचन जो इब्रानियों अध्याय 12 वचन 15 में हमने पढ़ा कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। And it says that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. And verse 16, that there be no immoral or godless person like Esau, who sold his own birthright for a single meal. और हम पढ़ते हैं उस वचन में 15 के दूसरे भाग में कि या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। वचन 16, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। So what spoke to me was that when we don't value the grace of God, and when we fall short of the grace of God, then we can become an immoral or godless person like Esau. और मैंने पाया कि यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर नहीं होता है, तो हमारे अंदर से कड़वी जड़ फूट कर निकलता है और एसाव के समान हम अधर्मी और व्यभिचारी बन जाते हैं। And it says that who sold his own birthright for a single meal. और यहाँ पर वचन कहता है कि उसने अपने एक बार के केवल भोजन के लिए अपने पहलौठे का अधिकार बेच डाला। So he did not know the value of the inheritance that God had given him. और उसने उस बात का वह वारिस होने का अधिकार, वह पहलौठे का अधिकार जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उसका उसने मूल्य नहीं जाना। So if the grace of God is not on us, then we forget and we don't value this inheritance that we have in Christ. और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, तब हम मूल्य नहीं जानते इस बात का कि वह वारिस होने का अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसका मूल्य हम नहीं समझते। To just think that God has made us heirs with Christ. और जैसे कि हम उस बात पर विचार करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के समानता में साथ में हमें वारिस होने के लिए बुलाया है। And we can forget that, if we can lose that if we fall or we are short of the grace of God. और हम इस बात को खो सकते हैं यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह से यदि वंचित रह जाएं। Like we heard that we already have obtained the grace, but we have to be strong in that. और जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ है, लेकिन हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उसमें बने रहने पाए। So that is what encouraged me today, and I want to pay heed to that and see that I don't fall short of the grace of God. और यह वह बात है जिसने आज मुझे उत्साहित किया है, और मैं अपने विषय में चौकसी करना चाहती हूँ हर समय कि कहीं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रहने पाऊं। Yeah, praise God.